Hello, so let us today discuss Nernst theorem. And what is Nernst theorem? This theorem explains that entropy of any body, that is S, approaches to zero as T approaches to zero. Means the degree of randomness in the system will decreases and approaches to zero. That means this system now will completely at equilibrium when its temperature approaches to zero. Okay, so this is our Nernst theorem, and with the help of this Nernst theorem, we will start from the following assumptions. That first is this is here from the book of Landau, that the specific heat is positive, means that the entropy means that the energy is monotonically increasing function of temperature. So this is how, because as we know that the specific heat is what? That is Cv is equals to nothing but T ds over dt at constant volume. So specific heat at constant volume is this. So specific heat means positive, and it is saying that specific heat positive means that energy is a monotonically increasing function of temperature. So specific heat is positive. If that means our energy is a monotonically increasing function of temperature. So how it is possible? Because अभी तक यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एनर्जी का फंक्शन. सो स्पेसिफिक हीट तो हम जानते हैं, दैट इज Cv is equal to T ds over dt at constant volume. Now one more expression, that was T is equals to dE over ds. We know that. So this number A and number B, if I include this, that Cv is equals to dE over ds and ds over dt at constant volume. Okay, something like that. So we can conclude that if specific heat is a function of temperature, okay, because as we know that specific heat जो है, that is increasing monotonically increasing function of temperature. इस तरह से ग्राफ रहता है इसका, स्पेसिफिक हॉट और टेम्परेचर का. सो अगर टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट जो है वो मोनोटोनिकल फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन again our temperature is a function of energy using this expression. Okay, so if I said that specific heat is a function of temperature, that means I can directly use that specific heat is a function of energy. Okay, specific heat is a function of energy. Function of temperature, further function of energy. Why concluding from this expression? So here this entropy is positive, means energy is a monotonic increasing function of temperature, because a specific heat जो है, that is nothing but the dependent function of energy. So यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम इसको. Okay, so line number 1 is concluded here. Conversely, we can say that when the temperature falls,
the energy decreases monotonically. Okay, again, specific heat means energy. So if I reduce this temperature, okay, पहले यहाँ टेम्परेचर था, रिड्यूस करा, तो जैसे जैसे रिड्यूस हुआ टेम्परेचर decreases and the fall decreases monotonically, and therefore when the temperature at its least value, okay, least value कौन सी है, that is absolute zero at this value. So when our temperature, this temperature is approaches to this value, that is approaches to zero, a body must be in the state of least possible energy. So its energy will also have its least value. Okay. Next, if we regard, now this is another number 3. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरह से डिपेंडेंट है. थर्ड, अगर मैं कंसीडर करूं, बिकॉज वी हैव अ सिस्टम having large number of subsystems or parts, okay, and if I consider that this is 1, 2, 3 and 4 having energy E1, E2, E3, E4, so and so, then if we regard energy of the body as the sum of the energies of its part into which the state of least energy, it is clear that the minimum value of the sum must be correspond to minimum value of each terms. इसका मीनिंग क्या हुआ? Because energy is nothing but sum of all its parts, so and so up to n part. So when temperature reduces and approaches to zero, then the energy of the system approaches to its least value. तो टोटल एनर्जी अगर वो लीस्ट वैल्यू पे पहुंचती है, टोटल एनर्जी, तो मीन्स हर एक पार्ट जो है इस टाइम वो भी क्या है, लीस्ट एनर्जी पे है, लीस्ट एनर्जी पे है. Okay, means total energy of the system is at its least value. Total. If total energy is at its least value, then of course क्या होगा, इसके जो स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, हर एक पार्ट का एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, एट इट्स मिनिमम वैल्यू. तभी हुआ ये, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो अपनी मिनिमम एनर्जी पे बैठ रखा है, तो टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो भी क्या होगा, इट्स मिनिमम वैल्यू, सिटिंग एट इट्स मिनिमम वैल्यू. तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, दैट इज पार्ट 8, कोई 8 पार्ट ले लिया मैंने, तो इस 8 पार्ट का जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, लीस्ट वैल्यू पे होगा. और ये लीस्ट वैल्यू कब होगा, व्हेन अवर टेम्परेचर विल बी एट इट्स लीस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा. डिक्रीज किया टेम्परेचर तो एनर्जी क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगा. नाउ लेट अस use mathematics, that what Nernst theorem explains, that the entropy of any body vanishes. Okay, entropy means randomness. So entropy of the system becomes zero when
temperature will be zero. So अगर एंट्रोपी जीरो रहता है और एब्सोल्यूट जीरो पे, तो जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है जो अभी तक हमने जो स्टडी करी, तो उन पे क्या इफेक्ट होगा. Okay, so let us explain one by one that what happens if temperature becomes zero, then the thermodynamic quantities उन पे क्या फर्क पड़ेगा. तो let us discuss one by one. Let us consider the specific heat CV या फिर specific at constant pressure ले लीजिए या volume. So specific heat is what? That is CV is equals to T ds over dt at constant volume. और दूसरी अगर बात करें that is specific at constant pressure, that is ds over dt at constant pressure. So in result, because specific heat is a function of temperature, the specific heat T or ds over dt at constant volume. Let us write this ds d log of T. So when T approaches to zero, that means ये जो क्वांटिटी होगा log वाला, ये log of T क्या बन जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट. और something over infinite that become zero. तो ये जो डेरिवेटिव है यहाँ पे something divided by infinite that become zero. तो स्पेसिफिक हीट क्या आया यहाँ पे, that is zero when T approaches to zero. Similarly, specific at constant pressure also zero, using this expression again. Now next quantity है, that is first हमने explain करा specific heat का. Second ले लेते हम, that is thermal expansion coefficient. Thermal expansion coefficient. So क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर मैं अप्रोच कराऊं जीरो को, तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है इस पे क्या फर्क पड़ेगा. सो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज व्हाट, दैट इज dV over dt at constant pressure. Okay, this will be zero if T approaches to zero. Okay, और ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लिया, लैंडाउ की बुक में 16.4 एक्सप्रेशन जो था वो क्या था आपके पास, ds ओवर, ये निकाल रखा है हमने, थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन जो निकाले थे वहां पे है ये, दैट इज T ओवर T. ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन उठाया हमने यहाँ. सो देखिए अब आपके यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है ये जीरो हो रहा है. क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है जीरो अप्रोच किया है. अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम जीरो अप्रोच कराएं तो एंट्रोपी क्या रहता है, दैट इज आल्सो जीरो. सो ये एक्सप्रेशन जो है ओवरऑल क्या देगा मुझे, दैट विल बी जीरो. सिमिलरली another term, that is a specific change in temperature with pressure, it also zero if temperature is zero. Okay, so because specific heat और टेम्परेचर जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज किया तो डिक्रीजिंग होंगे. ओके, सो एंट्रोपी जो है
वो वैनिश कर रही थी। अगर टेम्परेचर जो है उसको मिनिमम किया जाए, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। सो एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, इनको एक टर्म में बांधने की कोशिश करी है पावर लॉ से, दैट इज एंट्रोपी is directly proportional to temperature with nth power. Okay, so F is nothing but ATN. और यहाँ पे A जो है आपका, that means the function of volume and or pressure. Okay जी, so ये इक्वेशन हमने यूज करके अब जो है हम स्पेसिफिक हीट को दोबारा से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। दैट स्पेसिफिक हीट Cp and Cv. So specific heat Cp minus Cv का एक्सप्रेशन हमने आर्टिकल में किया था। अगेन प्रीवियस आर्टिकल 16.9 इक्वेशन है ये, और ये इक्वेशन क्या निकल के आता था, दैट वाज माइनस ऑफ टी dV over dt at constant pressure is square root of that, and dV over dP at constant temperature। ये इक्वेशन था आपका 16.9। ओके, जहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस इक्वालिटीज से पहले जो आर्टिकल है दैट इज स्पेसिफिक हीट जो हमने निकाला था Cp माइनस Cv इज ग्रेटर देन 0, वो वाला आर्टिकल है ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो स्पेसिफिक हीट है Cp माइनस Cv, जो एक्सप्रेशन रिलेशन निकला था दैट इज Cp माइनस Cv इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें अगर हम एंट्रोपी का एक्सप्रेशन यूज करें दैट इज टेम्परेचर इज अप्रोचेस टू जीरो एंड एंट्रोपी विल आल्सो अप्रोचेस टू जीरो, तो इस केस में जो है बिकॉज स्पेसिफिक हीट जो है पहले से ही आपकी क्या निकल के आ रही है, दैट इज जीरो। ओके, स्पेसिफिक हीट दैट इज जीरो व्हेन T इज जीरो। सो ये जो क्वांटिटी होगा दैट इज Cp माइनस Cv, that will also zero if your temperature will be zero, और ये जो क्वांटिटी होगा वो जीरो को फास्ट अप्रोच करेगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वन। इंडिविजुअल वन का इंडिविजुअल जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया या फिर वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक हीट दैट इज Cp माइनस Cv ओवर Cp अगर डिवाइड किया जाए तो ये भी क्या आएगा, टेम्परेचर अगर जीरो है तो स्पेसिफिक हीट भी क्या होगा आपका जीरो होगा। सो हम जो है एंट्रोपी वाला एक्सप्रेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n करा था उसको हम स्पेसिफिक हीट को इसकी टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन दैट Cp minus Cv that also proportional to T 2n plus 1। Why is 2n plus 1? बिकॉज यहाँ जो है आपकी डबल पावर है। ओके, और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है अगेन, सो इस तरह से इसको कर रखा होगा 2n plus 1 से। और अगर यही इक्वेशन मैं डिवाइड कर दूं दैट इज बाय Cp, तो ये मेरे पास क्या देगा, प्लस डिवाइडेड बाय देन इट विल बी n plus 1, डिवाइड हुआ ये, देन ये जो है एक्सप्रेशन आपके स्पेसिफिक हीट के व्हेन आपके टेम्परेचर जो है हम अप्रोच कराएं जीरो को। सो वैसे तो
जो आपका आर्टिकल है नन्स थ्योरम का वो ये है कि एंट्रोपी आपकी अप्रोच करती है जीरो को व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो, बट जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, अगर आपका स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर जीरो अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा अगर थर्मोडायनेमिक इनइक्वालिटीज या थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो है उन पे देखा जाए ये असर। ओके, तो असर हमने देखा यहाँ पे जो बाकी टर्म्स थी वो भी अप्रोच कर रही है जीरो को, थर्मल एक्सपेंशन देखा, स्पेसिफिक हीट देखी, वो सारी अप्रोच क्या कर रही है जीरो को। ओके, और टेम्परेचर का डिपेंडेंसी जो है एंट्रोपी का इस तरह से है, और अगर स्पेसिफिक हीट का लिया जाए टेम्परेचर पे तो डबल होगा इसका, और डिवाइड किया जाएगा तो n+1 एक टर्म जो है वो कम हो जाएगी। सो अगर मैं स्पेसिफिक हीट जो है बॉडी का निकालना चाहती हूँ और एंट्रोपी मुझे देखना है कि कितना है, और स्पेसिफिक हीट जो है वो भी मुझे देखना है कि कितना है किसी बॉडी का, तो इसके लिए आपको दो में से एक क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ओके, बिकॉज वी हैव अ सिस्टम हैविंग दिस इंडिविजुअल पार्ट्स। सो अगर स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है तो आप एंट्रोपी निकाल सकते हो, या फिर आपको या एंट्रोपी पता है तो आप स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। तो एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे एंट्रोपीज स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट जो है वो पता है। ओके, और कैलकुलेट क्या करना है मुझे एंट्रोपी, तो ये क्वांटिटी पता है तो एंट्रोपी कैसे पता चलेगी, बिकॉज सीपी और सीबी कह लीजिए, तो व्हाट इज दिस क्वांटिटी, लेट मी टेक ओनली वन, Cp is equals to T ds over dt at constant pressure, then Cp over T ds over dt at constant pressure। तो स्पेसिफिक हीट्स आपको सब सिस्टम्स की मालूम है, specific heat to each of the body part, so you have to calculate what entropy. So how to calculate entropy? By integrating this equation. So by integrating this, what will we get? That is Cp over T with the temperature, and this will give ds over dt 0 to T। So finally यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मुझे क्या देगा, that is T, sorry not T, what S is equals to 0 to T Cp over T and dt। Okay, so entropy of the system will be 0 to T Cp over T into dt। सिमिलरली हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिया, वॉल्यूम के लिए भी ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट हमें विद रिस्पेक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर नोन होंगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। नाउ heat function also can be calculated like that, W is nothing but W naught plus 0 to T Cp dt, equation 2। Okay, because W is what, E plus PV। Okay,
और यहाँ पे W नॉट जो है ये क्या है आपका, सो स्पेसिफिक हीट, नॉट स्पेसिफिक हीट बट हीट फंक्शन for T is 0. Okay, means heat function जो है आपका when temperature is something, कुछ टेम्परेचर सिस्टम में है तो उसके लिए ये होगा, और टेम्परेचर अगर 0 है तो उसके लिए ये आएगा। मीन्स ये जो आपका एक्सप्रेशन है नंबर 2 और नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 जो है, यहाँ कुछ टेम्परेचर है, फाइनाइट टेम्परेचर है यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे भी फाइनाइट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये क्वांटिटीज जो हैं कुछ रिजल्ट देंगे। और अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं आप, ओके, तो क्वांटिटीज जो होंगी वो वेरी करेंगी, ये वाली, ओके, और ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और कंसीडर करें अगर टेम्परेचर हम अप्रोच कराएं 0 को, ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, 0, ओके। और इन रिजल्ट अगर मैं देखूं इक्वेशन 1 एंड 2 को, व्हेन T approaches to 0, तो 1 क्या बन जाएगा, दैट इज S is 0 and W is what, W naught when temperature is approaches to 0. मीन्स ये इक्वेशन जो है विद temperature some value, okay, with temperature given. So next because phi W is heat function, so W के बाद phi है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, वो क्या है, W minus TS at any temperature. ओके, एट एनी टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर जो है वो 0 नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी इक्वेशन अगर हम देखें तो ये एट एनी टेम्परेचर है 1 and 2, ओके। तो क्योंकि हमें किसी एक टेम्परेचर के लिए वैल्यू निकाल लेनी है और फिर उस वैल्यू में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। दैट फाई विल बी, नाउ W is equation 2 and F is 1. तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में, दैट फाई विल बी W नॉट माइनस प्लस 0 to T Cp dt and minus T and F is what, equation number 1, that is 0 to T Cp over T into T. So this is very important relation, that is equation 4, that contain heat function, work function and specific heat temperature. तो ये जो क्वांटिटी आपकी इक्वेशन नंबर 4 निकल के आई, दिस इज एट एनी टेम्परेचर T, at any temperature T. So when we reduce this value, कौन सा वैल्यू, टेम्परेचर का, ओके, टेम्परेचर का वैल्यू एट एनी टेम्परेचर पे ये इक्वेशन 4 है। सो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, देन व्हाट विल हैपन, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इसमें चेंज आएगा और मे बी इट बिकम W नॉट, ओके। सो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, और वाई इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। सो फाइनली यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक हीट्स मालूम है, ओके, if you know the specific heat at constant pressure or may constant volume, then you can calculate another thermodynamic inequality, not inequality but quantity, okay. Similarly in previous expression, यहाँ पे भी अगर देखें तो स्पेसिफिक हीट जानने से हमें एंट्रोपी का पता चल रहा है, यहाँ पे भी वर्क फंक्शन, हीट फंक्शन का पता चल रहा है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है
वो भी वैल्यू निकल के आएगी अगर हमें स्पेसिफिक हीट्स पता होंगी. Okay, so this is our Nernst theorem. So Nernst theorem at any temperature and Nernst theorem at temperature 0, what will happen in the quantities, ये हमने सारा calculate